Hello students, welcome back, and this is the video of class 9 biology. So as you saw that we are going to discuss about the cell organelle, that is endoplasmic reticulum, and this topic is taken from the chapter 1, fundamental unit of life. So let's begin. Before studying the endoplasmic reticulum, we will talk about the cell organelles, because endoplasmic reticulum is a type of cell organelle. So we will talk about the cell organelle. What are these? So if you see any cell, eukaryotic cell, then you will find that there is a cell membrane which separate the internal structure of the cell from the external environment. Like this, you can see here in this diagram, there is a covering envelope, and that envelope cover the internal structure of the cell, and the cell membrane keeps the content of the cell separate from the external environment. In addition, many chemical activities keep on taking place in each cell. These chemical activities are required to support the complicated structure and function of multicellular organism. So thus, to perform these activities, the cells have many organelles that float in the cytoplasm, because each cell does so many activities, metabolic activities in it, and these activities cell perform with the help of many organelles that float in the cytoplasm. Like you can see here, there are so many organelles are being seen here in the cytoplasm, like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, vesicles, mitochondria, ribosome, nucleus. And these organelles help the cell to perform various activities in the cell. And some organelles are membranous and some are non-membranous. कुछ organelles जो होते हैं वो membranous होते हैं, means they are made up of membrane, and कुछ organelles जो होते हैं वो non-membranous होते हैं, जैसे ribosomes and all. And membranous organelle is a characteristic feature of eukaryotes only. membranous organelle जो होते हैं वो eukaryotic cells में ही सिर्फ पाए जाते हैं. In prokaryotic cell they are absent. Some of these organelles are very small, so that they cannot be seen under the normal microscope. It can only be seen under the electron microscope. कुछ सेल ऑर्गेनेल इतने ज़्यादा छोटे एंड स्मॉल होते हैं कि उनसे सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल्स. हर एक सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग फंक्शन होता है, एंड दे परफॉर्म वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन दैट द सेल. So in this video I am going to discuss about the endoplasmic reticulum. Here you can see this is the endoplasmic reticulum tube, the network of the tubes you are seeing here in the cell, and that is the endoplasmic reticulum. Okay, we will talk about the endoplasmic reticulum. You can see here, these are the network of tubes made up of membranes. Okay, so let's see endoplasmic reticulum. So here you can see the endoplasmic reticulum, and these are the tube and sheets made up of membranes, and they look like this. Somehow they look like this, and this is the nucleus. And you can see these endoplasmic reticulum have surrounded the nucleus. So let's see, endoplasmic reticulum also known as ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं. ये क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड शीट्स दैट रन थ्रू द साइटोप्लाज्म. ठीक है, आपस में जुड़े हुए बहुत सारे जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्स एंड शीट्स होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं. एंड ये साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म दे आर फाउंड, एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज विद द न्यूक्लियर एनवेलप. इसको आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है. Like here you can see these are the endoplasmic reticulum connected with the nuclear membrane.
नाउ इट लुक्स लाइक राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इसमें आपको राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर होती है प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। जितने भी ट्यूब्स एंड इसमें शीट्स एंड इन बैग्स होते हैं, दे आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे मेक अ नेटवर्क सिस्टम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है और ये दो तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, वन बाय वन वी विल सी rough endoplasmic reticulum and then smooth endoplasmic reticulum. So first of all we will talk about the rough endoplasmic reticulum. It is also known as RER in short, and it has a rough membrane because a number of ribosomes are found attached to its outer surface. इसका नाम rough इसलिए होता है क्योंकि इसके outer surface पे बहुत सारे ribosomes के particles क्या होते हैं, attached होते हैं। और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स एक ऐसे पार्टिकल होते हैं सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन के प्रोडक्शन का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंड्स दीज प्रोटीन टू डिफरेंट साइट्स इन द सेल एज पर रिक्वायरमेंट। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन देयर सरफेस एंड दे लुक रफ, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, इट प्रोड्यूस प्रोटीन। सो जो भी प्रोटीन इसके अंदर राइबोसोम्स बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द सेल। नाउ विल टॉक अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट में SER कहते हैं, इसके पास राइबोसोम नहीं होता है, इट डजेंट हैव राइबोसोम। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल एंड लिपिड। इसके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक दिस यू कैन सी दीज आर वेरी लुकिंग स्मूथ बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी राइबोसोम पार्टिकल। और ये क्या करते हैं, ये फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल को बनाने का काम करते हैं। लिपिड टुगेदर विद सम प्रोटीन हेल्प इन द बिल्डिंग अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रू द प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और आपको पता है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से बनता है और लिपिड और प्रोटीन को मिलाकर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाई जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है सेल के अंदर, वो हम देखेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट। ये साइटोप्लाज्म को क्या करता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है एंड इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। दस एक्ट एज अ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। इसलिए आप कह सकते हैं कि सेल का एक स्केलेटल फ्रेमवर्क, अंदर से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि सेल का शेप जो होता है वो मेंटेन रहता है इंटरनली एंड इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। Secondly, it serves as a channel and help in transporting different materials such as protein between various regions of the cytoplasm as well as between the cytoplasm and the nucleus. It helps in intracellular transport. It is also known as the circulatory system of the cell. क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन के ट्यूब्स एंड शीट का चैनल होता है, एक नेटवर्क होता है। तो उस चैनल के थ्रू ये क्या करता है, ये डिफरेंट मटेरियल लाइक प्रोटीन एंड बहुत सारी चीज़ों को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। एंड दैट्स वाई इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द सबस्टेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। सो हियर यू कैन सी दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स द पाथवे एंड चैनल एंड transport the substance from one part of the cell to another part. Next,
It acts as a cytoplasmic framework and provide a large surface area inside a cell for various biochemical activities. बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे होते हैं उसके लिए ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि ये इसके ट्यूब्स एंड शीट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं एंड हेंस इट दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द completion of different kind of biochemical activities within the cell. नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. बहुत सारे रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर जिसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. तो बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट, इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट सम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. अगर हम वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की बात करें तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. अगर बाय द वे कोई पॉइजन या ड्रग जो होता है हमारी बॉडी में चलाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई यानी कि डीएक्टिवेट करने का काम करता है और एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन. So this is all about the endoplasmic reticulum, and in the next video we will talk about some other cell organelle. Till then, thank you. Have a nice day everyone.